Hello students, welcome to channel Maths by Dr. Shruti, and today's topic is Laplace transformation again. We will do today's second shifting theorem. Second shifting theorem is that the function which is convert into the by using the second shifting theorem and taking Laplace, it becomes in power of exponential e minus as fs. Okay, and when we apply the first shifting theorem is that Laplace transformation of ft minus a, it becomes a e minus as fs. Okay, in second shifting theorem, what we do, देखिएगा, second shifting theorem is known as also the unit step function theorem या फिर unit step function, it is also called unit step theorem. If the Laplace transformation of ft equal to fs, you know very well the Laplace of ft is denoted by the fs. The time value function convert into the s function. Then what is the gt? Gt is defined as ft minus a when t greater than a, 0 when t lesser than a. This is a. Okay, and when t lesser than a, this is the any other function which is denoted by gt, and it is given, this is a shifting t minus a, this shift by a when t greater than a and 0 when t lesser than a. Then what is the Laplace of gt? Question arises that what is the Laplace of gt? If the Laplace of ft is fs, what is, मतलब it means कि Laplace of ft क्या है, fs ही है. बाकी question is arising here that what is the Laplace of gt? If the range is in given, if the function is in the range form, then this is the answer. The Laplace of gt is defined as e minus as fs. Okay, e minus as fs. What is fs? Fs is given here, Laplace of ft. Fs is given above, Laplace of ft. So the answer will be Laplace of gt equal to e minus as Laplace of ft. Clear? If the question is example 1 has given here, and this is question is denoted any function ft is in the range form, like cos t minus 2 pi upon 3 is given when t greater than 2 pi upon 3 and 0 when t lesser than 0. The question is in the range form again, and they are asking about the Laplace transformation of this ft. Okay, so what you would do, if the function is a simple form, if this is not in the range form, then what you do, the Laplace of ft is fs. You know very well clear what is the Laplace, like Laplace of e exponential eat. There is not a range, this is a direct function, so it become a 1 upon s minus a. And if it is a any other function, if we apply like ft minus a, then what is the answer? Laplace of e minus as fs. First shifting theorem, this is the first shifting theorem, right? This is the first shifting theorem. First shifting theorem में what we have studied in a first shifting theorem, what we have done? Anyone have gone through the previous video? The first shifting theorem, please check the previous videos also when we are doing the new one, and please go through the previous one. First shifting theorem, recalling, is e minus at ft. What is the first shifting theorem? E minus at ft, it become a, what is the answer? It become a fs minus a. It become a fs minus a. It means if the multiplication of exponential with the function of ft, then the function is shifted by a in s domain, then the function become a shifted with a. ओके अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन है फंक्शन के साथ, देन द फंक्शन चेंज हो जाता है, ए में शिफ्ट हो जाता है, एस में क्या शिफ्ट हो गया, ए शिफ्ट हो गया, इतना एस कितना शिफ्ट हो गया, ए शिफ्ट हो गया. बट दूसरी तरफ ऑन दी अदर हैंड, द सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम इज सेइंग, is explaining that if the function
is given t minus 2 pi upon 3. Here the shifting already given. Shifting is the function is in t domain is किससे शिफ्ट है 2 pi upon 3 से शिफ्ट है. When t greater than 2 pi upon 3 and lesser than 0 then 0, then the what is the Laplace. तो लाप्लेस क्या कहता है, लाप्लेस आपका इस फंक्शन के लिए व्हेन द ऐसे होता है तो हम लाप्लेस डायरेक्ट लगा लेते हैं. अगर ए में शिफ्ट जा रहा है तो उसको हम लिख देते हैं ई माइनस ए एस एफ एस डी एस, ई माइनस ए एस एफ एस. क्लियर. ये मैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग एक्सप्लेन कर रही थी. देन आई एम रिमूविंग इट. ओके and taking the new slide. The question is that function is defining as cos t minus 2 upon 3 when t is lesser than 2 pi upon 3, greater than 0 2 pi upon 3 and lesser than 2 pi upon 3 is 0. So the Laplace क्या कहता है इस केस में, दिस इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होती है ये. अगर आपके पास कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है, बार बार मैंने ये लिखा है टी माइनस ए में ऐसे डिफाइन है, टी में शिफ्ट हो रहा है, टी में शिफ्ट हो रहा है. देखो फर्स्ट शिफ्टिंग में हम एस में शिफ्ट कर देते हैं, आंसर में एस में एस माइनस ए कर देते हैं. ठीक है, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होती है तो ए में शिफ्ट कर देते हैं. सेकंड शिफ्टिंग में टी में शिफ्टिंग गिवन होगी तो आपको एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस कर देना है. क्लियर. तो आपको क्या करना है, व्हेन द shifting is given in the t function, t domain function by 2 pi upon 3, then the answer will be in the exponential. The shift multiplication will form in the exponential function. If the Laplace is given, देखो फंक्शन ऐसे डिफाइन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताइए. द आंसर विल बी e माइनस 2 पाई अपॉन 3. क्या हो जाएगा, e माइनस ए एस होता है ना, a इज वॉट, a इज a 2 पाई अपॉन 3, e minus 2 pi a 2 pi upon 3 s fs. fs is what, Laplace of ft. fs क्या होता है ये याद रखना जरूरी है बार बार कि what is the Laplace of ft. Laplace of ft is fs. This is a very important point, make sure remember it. And Laplace of ft equals to fs. And what is ft? ft is here cos t. फंक्शन दिया है cos t. ft क्या दिया है cos t. और what is cos t? cos t होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. a is what, 1. so this is fs. now putting the value in the fs function and it becomes e minus 2 pi upon 3s s upon s square plus 1. so finally the Laplace of ft here is ft is fs. तो Laplace of gt आएगा. अच्छा gt is, we have taken the gt as an example. तो मेन फंक्शन इज ft ओनली. ओके तो आंसर इज द क्लियर. आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. वन मोर फंक्शन हैज गिवन. दिस इज द फंक्शन इज इन द रेंज अगेन t स्क्वायर t माइनस 1 7, सॉरी t माइनस 2 है ये. दिस इज t माइनस 2. वेट फॉर अ मिनट. ये क्या है हमारे पास, t माइनस 2 है. तो कोई फंक्शन दिया है, रेंज में गिवन है फंक्शन. ओके तो आपके पास क्या है, t स्क्वायर t माइनस 2 7 रेंज गिवन है. अब इसमें ऐसे वाले फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन. तो ऐसे फंक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में. देखो यहाँ सेकंड शिफ्टिंग लगेगी, सेकंड शिफ्टिंग ही लगेगी. बाकी सेकंड शिफ्टिंग से पहले आपको इसको क्या बनाना है, यूनिट स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट स्टेप फंक्शन. इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप में कन्वर्ट करने पड़ेगा. और ये होता है पीस वाइज फंक्शन. क्या बोलते हैं इसको, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो पीस वाइज फंक्शन के लिए आपको देखो क्या करना है, इसका लाप्लेस निकालना है. लाप्लेस अब आप कहोगे मैम कि ये इसमें डायरेक्ट लगा सकते हैं ना हम, जैसे एज वी हैव सोल्ड अर्लियर टी देख. लेकिन यहाँ पर देखो टी स्क्वायर है, वी डू नॉट हैव द t माइनस समथिंग. यहाँ पर रेंज में गिवन है. देखो यहाँ दिया है t लाई बिटवीन 0 to 2, t लाई बिटवीन 2 to 3, t ग्रेटर देन 3. यहाँ पर देखो अलग अलग पीस वाइज ब्रेक कर रखा है बेसिकली, यानी कि 0 1 2 एंड 3. यानी कि आपके पास 0 से लेके 2 तक एक अलग फंक्शन है. यहाँ पर टी स्क्वायर पर है. और फिर 2 से 3 के बीच में आपके पास क्या फंक्शन है, t माइनस 2 है.
और व्हेन टी ग्रेटर देन बड़ा हो जाता है तो 7 है। अब पीस वाइज फंक्शन है ना, अलग अलग फॉर्म रेंज में है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एक ही फंक्शन में कन्वर्ट करना है। हम इसको बना लेते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन में। ठीक है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन क्या कहता है, यूनिट स्टेप बनाने के लिए पहले आपने इसको देखो, जहाँ पर चेंज आ रहा है यहाँ पर फंक्शन देखो 2 पे चेंज हो जा रहा है ना, 2 यहाँ पर लेस खत्म हो रहा है, 2 पे जाते ही फंक्शन यहाँ पे 2 पे फंक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, t-2 हो रहा है ना। तो यहाँ पर फंक्शन जब चेंज हो रहा है तो यहाँ पे फंक्शन नया फॉर्म हो जाएगा, न्यू फंक्शन बन जाएगा। तो न्यू फंक्शन यहाँ पर क्या वैल्यू करेगा, क्योंकि यहाँ पर t चेंज हुआ है, यहाँ पर चेंज हो गया है, तो यहाँ तक तो t² था, फिर इसके बाद t-2 होगा। तो 2 राइट 2 पर कितना होगा, देखो ये बनाया है, पहले 0 से 2 पर तो t² ही रहेगा, ये चेंज नहीं आएगा, ये इतना ही रहेगा। फिर t से लेके 2 से 3 पर फंक्शन चेंज हो जाएगा, कितना होगा, t-2 दैट इज 2, ये गलत लिखा है, t-2 माइनस t² कितना हो जाएगा। यहाँ से हम आपको ध्यान रखना है, पीस वाइज को जब भी एक फॉर्म बनानी होती है आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये फंक्शन कितने में चेंज हो गया है, यहाँ पे t=2 पर फंक्शन चेंज हो रहा है ना, तो फंक्शन चेंज हो रहा है तो हमारा जो फाइनल फंक्शन बनेगा ना, तो ये बनेगा, इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो हमारा फंक्शन आएगा वो हो जाएगा t-2 माइनस t², यहाँ पर ये लिख दिया मैंने t-2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका 3 लेसर तक आपके पास यही है, t-2 है, ऊपर ऊपर t-2 था ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 3 पे चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी फंक्शन एग्जैक्ट t3 पे कितना होगा, वो होगा 7 माइनस t-2, 7 माइनस t-2। तो ये फंक्शन हमारा कंप्लीट बन चुका है, फॉर दी यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या करना होता है, कन्वर्ट फंक्शन इनटू द यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसको हमें यूनिट स्टेप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फंक्शन ft लिखेंगे, वही फंक्शन है, इसको आपको यूनिट में बनाना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये एग्जैक्ट लिखेंगे, 0 से लेसर पे क्या है, 0 से 2 पे आपके पास t² है। ठीक है, यहाँ पर हम हमारा 0 से 2 पर t² है, इसको एज इट इज रख लेंगे, दैट इज t²। ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिफाइन नहीं होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ से डिफाइन शुरू करेंगे, यहाँ से डिफाइन होगा, क्योंकि रेंज क्या होती है यूनिट स्टेप फंक्शन की मैं बता दूंगी, 2 से ग्रेटर पे होती है ऐसे आपके पास ना, तो ये यहाँ पर डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हमने यूनिट स्टेप फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया ut-2, और ये हमने देखो यहाँ पर t-2 लगाइएगा, -2 t² जो फंक्शन था ना, यहाँ पर ut-2 इंट्रोड्यूस करना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया आपके पास ut-3 आ गया है। ठीक है ना, ut-3 पे चेंज हो रहा था ना, ये वाला 7 माइनस फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फंक्शन ft एज इट इज रखेंगे, t² एक फंक्शन बन गया फर्स्ट, ut-2 ये हो गया आपके पास, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन बन गया है, ये हमारे पास थर्ड फंक्शन बन गया है। अभी हमें इसका पूरे का लाप्लेस निकालना है। ठीक है, तो लाप्लेस आपको फाइंड करना होगा, तो हमारे पास लाप्लेस क्या कहता है, लाप्लेस की ये थ्योरम होती है, देखो ut- के लिए मैंने यहाँ पे भी राइट किया हुआ था, ये लाप्लेस अगर आपको इस तरीके पर ही लाप्लेस अप्लाई होता है बेटा, समझिएगा तुम, ये जैसे अगर जीटी आपको डायरेक्ट फंक्शन दे रखा तो उस पर आप लाप्लेस डायरेक्ट निकाल लिया था ई-, लेकिन हमारा यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे रखा था ना, यहाँ पर रेंजेस में दिया हुआ था, पीस वाइज ब्रेक किया हुआ था, 2 से 3, 3 से ग्रेटर, उसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। उसमें हमेशा आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या होता है लाप्लेस, देखो लाप्लेस ऑफ ut-a, ये भी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम ही है। ठीक है, आधी बुक में यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ ही सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम डिनोट किया गया है। तो क्या होती है ut-a फंक्शन ऑफ t-a, जैसे हमने कन्वर्ट करा है ना t-a, a में फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि जहाँ 2 पे चेंज आ रहा था ना, मतलब 2 या 3 पे चेंज आ रहा है, जहाँ चेंज नहीं है तो उसमें हम लेंगे ही नहीं यूनिट स्टेप फंक्शन, तो उसमें हो जाता है e-as-fs, इसका लाप्लेस ही हो जाता है। देखो लाप्लेस आपके पास, ये मैं अभी नेक्स्ट पेज पे अब क्लियर कर देती हूँ, इसको यहाँ गलत हो जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हमने इसको पीस वाइज को हमने पहले ये यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया आराम से, जहाँ चेंज आ रहा है वहाँ पे एक फंक्शन फॉर्म किया, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर चेंज आ रहा है 2 पे चेंज आ रहा था तो फंक्शन फॉर्म करा है, जेन्युइनली बनाया है इसको फंक्शन, ये फेक है ये रियल है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कन्वर्ट किया है,
u2 माइनस टू, टू माइनस थ्री। यहाँ पर फंक्शन को u3 में इसलिए नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ चेंज ही नहीं है, जीरो टू पर चेंज हो गया ना फंक्शन, यहाँ तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है टू तक जा रहा है, वो चेंज ही नहीं आया है, तो फंक्शन एज इट इज रहेगा। ये पीस वाइज नहीं है, यहाँ स्मूथ चल रहा है फंक्शन, जीरो से टू पर आपके पास सेम फंक्शन है टी स्क्वायर, नो चेंज, तो एज इट इज टी स्क्वायर रखा है। यहाँ पे टू पे आपका, यहाँ पर टू स्टॉप होता है, एग्जैक्ट टू पर क्या है, टू पर यहाँ पे चेंज अलग था, यहाँ टू से बड़े पे अलग था, यहाँ पीस वाइज हो गया, ब्रेक हो गया। तो इस केस में आपके पास क्या बन जाती है, यूनिट स्टेप फंक्शन फॉर्म बनती है। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ut माइनस थ्री ये राइट किया, अब आपने इसको यूनिटी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा, t माइनस टी स्क्वायर माइनस वन ऐसे राइट कर लिया। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीस वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। लाप्लेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका आपको लाप्लेस कैसे लेना होता है, देखो लाप्लेस लेने के लिए लाप्लेस ut माइनस ए, ये वाली थ्योरम आपको सबको याद रखनी है। ut माइनस ए और फंक्शन जहाँ चेंज हो रहा है उस पर लगती है, ए पे चेंज हो रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाता है t में a शिफ्ट हो रहा है बेसिकली, है ना। t कितना शिफ्ट हो रहा है, t कहाँ चेंज हो रहा है, टू पे शिफ्ट हो रहा है ना, टू पे शिफ्ट हो रहा है, t माइनस ए ut माइनस ए, तो यहाँ थ्योरम ये लग जाती है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट मैंने तीन केस बना लिए, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। फर्स्ट में लाप्लेस क्या हो जाएगा, टू अपॉन एस स्क्वायर, इसका पता ही है ना, डायरेक्ट लग गया लाप्लेस। लाप्लेस निकालना शुरू करते हैं। लाप्लेस टी स्क्वायर का क्या होता है, फैक्टोरियल टू अपॉन एस क्यूब, कैसे, सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब टी की पावर एन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस एन प्लस वन, सॉरी, तो बताओ टू होगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल टू एस टू प्लस वन एस क्यूब, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड उठा लिया है, सेकेंड हमारे पास ut माइनस टू टी माइनस फोर फंक्शन जो गिवन है, तो चेंज इनटू द फॉर्म एफ टी माइनस, हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, वन वन में बाई चांस से दिया गया है, हमें चेंज करना है ut माइनस टू, हमें किस में चेंज करना है, ut माइनस टू एफ टी माइनस टू में। यहाँ पर लेकिन t माइनस टू है लेकिन एफ टी माइनस टू नहीं है, तो मैंने क्या किया, चेंज करने के लिए, जब याद रखिएगा चेंज करने के लिए जब भी आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो t को आपको कन्वर्ट करना है बेसिकली, क्योंकि t है ना यहाँ पर, हमें फंक्शन भी किस में कन्वर्ट करना है, t माइनस टू में कन्वर्ट करना है। t को आपको चेंज करना है, t माइनस टू, टू माइनस कर दो प्लस ऐड कर दो, लिख सकते हैं ना, t को हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस टू प्लस टू लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा t माइनस टू में, यहाँ पे चेंज करा दो, t के प्लेस पे क्या रख दिया, t माइनस टू रख दिया, प्लस टू रख दिया, ऑल्सो t माइनस टू प्लस टू होल स्क्वायर माइनस वन एज इट इज। अब देखो यहाँ काटना नहीं है, काटने के लिए थोड़ा ना, हमने बनाने के लिए तो किया t माइनस टू फॉर्म, अब t माइनस टू एज इट इज रहने दो, सिंप्लीफाई कर लो इसको, कैलकुलेशन करो इसकी, इसको शॉर्ट बना लो, प्लस टू एज इट इज यहाँ रख लो, माइनस वन इसके साथ ले आया, इसमें होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, t माइनस टू का होल स्क्वायर a स्क्वायर, ओके, ये एक दूसरी टर्म हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, करेक्ट। t माइनस टू सोल्व नहीं करना है, इसे मत खोल देना, फॉर्म ही हमें एफ टी माइनस टू डेवलप करनी है ना, फंक्शन को t माइनस टू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एक फॉर्म आ गया t माइनस टू, इसको हटा दो, प्लस वन बच गया, कोई बात नहीं, t माइनस टू का होल स्क्वायर आ गया माइनस फोर, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किया ना, देखो माइनस फोर t माइनस टू और प्लस वन, तो माइनस थ्री हो गया, ये t माइनस टू एज इट इज हो गया, प्लस वन माइनस फोर थ्री हो गया, क्लियर, बन गई ना। पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया बताओ जरा, एफ टी माइनस टू में कन्वर्ट हो गया, ये एफ टी माइनस टू फॉर्म है, राइट। अब इसका लाप्लेस ले लेंगे, यानी कि ये पूरा डोमेन मैंने किस में चेंज कर दिया, इस पूरे डोमेन में चेंज कर दिया ना यहाँ पर, ये कोई नहीं समझा पाएगा, आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसको रिपीट कर करके देख लेना, समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, या पिक्चर भेज देना मुझे इसका स्क्रीनशॉट, कहाँ क्लियर नहीं हो रहा किसी एक वीडियो में मैं शॉर्ट में समझा दूंगी। इसमें आपने लाप्लेस ले लिया, अब देखो ये पूरा फंक्शन नोट कर लिया, इसके प्लेस पे ये रख दिया, यहाँ से बाहर माइनस ले लिया मैंने, ये माइनस माइनस है ना टर्म सारी, माइनस बाहर ले लिया, प्लस प्लस आ गई सारी, क्लियर। ut माइनस वन ऑपरेट करा दो, ये देखो यूनिट स्टेप फंक्शन ऑपरेशन होता है, कर सकते हैं इसको, एक फंक्शन होता है, इसको इस साथ लगा सकते हैं, इसमें लगा दिया, इसके साथ करा दिया, इसके साथ करा दिया और इसके साथ करा दिया, ut माइनस ए टी माइनस ए क्या हो जाता है, e माइनस ए एस, ई होता है ना, क्या होता है e माइनस टू एस अपॉन एस स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया ना, क्या होता है ut माइनस ए का बताया तो था, ut माइनस ए टी माइनस ए का फॉर्मूला होता है e माइनस ए एस एफ एस, ये होता है,
अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, ये देखो यू टी माइनस ए एफ एस, यानी यू ए क्या है 2s है ना, ई माइनस 2s अब एफ एस क्या है ये याद रखना, एफ एस यहाँ खाली टी है टी माइनस 2 नहीं है, एफ एस इज टी। एफ एस इज टी, तो फाइनली ई माइनस एफ एस टी, टी का क्या होता है, टी का होता है 1/s², हो गया। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर देखो ई माइनस 2s, यहाँ टी स्क्वायर है, एफ एस क्या है लाप्लेस ऑफ एफ टी क्या है यहाँ टी स्क्वायर क्या होता है फैक्टोरियल 2/s³, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो टी माइनस 2 है खाली, लाप्लेस ऑफ यू टी माइनस ए का याद रखना ई माइनस ए एस अपॉन एस होता है बस। तो यहाँ पर ये लगे ई माइनस 2s अपॉन एस, ई माइनस 2s अपॉन एस, क्लियर, इसका आ गया है। सिमिलरली थर्ड सेक्शन लिया, यहाँ पर 8 माइनस टी है, इसको भी कन्वर्ट करो, यहाँ पर फॉर्म बनानी है, यहाँ पर -3 है ना, तो -3 वाली फॉर्म बनानी है। टी में 3 ऐड कर दिया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, टी में ओनली 8 एज इट इज रखो, टी में -3 ऐड +3 ए सब्ट्रैक्ट, क्लियर। तो अब सोल्व कर लो इसको, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन बन गया देखो टी माइनस में, अब यहाँ पे रख दिया इसके प्लेस पे 8 माइनस टी के, और लाप्लेस ऑपरेट करा दो, यू टी माइनस 3 5 के साथ करा दिया, यहाँ 5 बाहर आ गया, फिर इसके साथ करा दो, इसके साथ करा दिया। यू टी माइनस 3 क्या होता है ई माइनस ए एस, ई माइनस 3s अपॉन एस, बताया ना भी, यू टी माइनस ए होता है ई माइनस ए एस अपॉन एस। एंड नेक्स्ट हो गया आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है ई माइनस ए एस, ए क्या है 3 अपॉन वो सॉरी एफ एस, ई माइनस ए एस एफ एस इज वॉट लाप्लेस एफ टी क्या है टी है, खाली टी है ना, अगर यहाँ स्क्वायर होता ना बेटे तो टी स्क्वायर होता, अगर यहाँ क्यूब होता तो टी क्यूब होता, समझो बात को। तो यहाँ टी है तो टी का क्या होता है लाप्लेस 1/s² होता है ना, क्लियर। तो दिस इज द लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट यूनिट फंक्शन दिस वन, एंड एडिंग दीज ऑल 3 टर्म्स एंड कैलकुलेट द फाइनल फंक्शन। तो तीनों को ऐड कर लेना, दिस वन एंड फर्स्ट वन, तीनों को ऐड करके ये आपका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ टी आया, एफ टी इज वॉट जो पूरा का पूरा ग्राफ फंक्शन दिया था इसका लाप्लेस आया ये। तो ये बहुत बड़ा फॉर्म बनी है और बड़ा ही क्वेश्चन लिया था मैंने, आप इसके बेसिस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को अच्छे से देखेगा और जो क्वेश्चंस में डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, क्लियर। एंड इसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको और दे दूंगी, लेट मी चेक अनदर क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको इसमें ना अटैच कर दूंगी आपकी एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन शीट या असाइनमेंट या क्विज, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, अब वीडियो मैं स्टॉप कर रही हूँ, प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, कमेंट भेज दीजिएगा, थैंक यू।